Uh, what are the direct notations? Combination of Heisenberg. Okay, the combination of Heisenberg and Schrödinger wave equation, that are the three things: cat, Bragg, and the operator. So, quantum gates are which type of matrix? Unitary matrix. Unitary matrix. So in this lecture we will discuss about the quantum gates and the quantum circuits. So before starting about this topic, as we know, there is a operators. Operators are the matrix which change the states from psi to psi prime. If we want to change the state from psi to psi prime, or change between different vector space, then we are using operator. So if we have a two operator A and B, if AB minus BA is equal to 0, then they are saying as a commutator. They are saying as a commutator operator. This means A commute with the B. Similarly, if AB plus BA is equal to 0, then it is called as a anti-commute. They are called as a anti-commute. Okay. So it is represented by the brackets and it is by the curly braces. Okay. So when we are combined two operator, they can be a commuter or anti-commute. Clear? So today we will discuss about the low cost implementation of the quantum circuits and quantum gates. So as we know, in classical computing we are using some classical gates to design the circuits. Okay. So circuit behavior is governed by implicitly by classical physics. What is the difference between classical gate and quantum gates? The classical gates, the behavior of classical gate is governed by the classical physics. Clear? Next, the single states are simple bit vector. So there is a sequence of 0 and 1 that is called as a bit vector, which we are used as a input data in our classical circuit. Operations are defined by the Boolean algebra. Operations are defined by the Boolean algebra in a classical computing. So there are some classical gate, NAND gate, AND gate, OR gate, NOT gate, and their combinations. So these are the universal gates, set of universal gate. So NAND is a universal gate, NOR is a universal gate, and the group of AND, OR, and NOT is also a universal gate. By using these three gates, you can create any circuit. So these circuits are easily implemented in fast, scalable, and microscopic technologies such as CMOS. Now we come to the quantum gates. So as we know, the quantum state is represented as a vector. Similarly, the quantum gates are represented as a operator, which is a matrix. So most linear operator we will be interested in this are unitary. So when we are talking about the quantum gates, they are the unitary matrix. So they can be represented in the form of matrix, and each column is a unit vector, and columns are paired by orthonormal to each other. So in last class we have discussed about the Pauli matrix, in which this is one Pauli matrix that is known as a quantum NOT gate. It is work as a quantum NOT gate that convert qubit 0 to qubit 1 and qubit 1 to qubit 0. So this is first column and this is second column. So first column C1 is a 0 1 and C2 is a 1 0. Both are unit vector and both are orthogonal to each other. So when we are creating a quantum gates, the columns are unit vector and pairwise orthogonal to each other. This is the property of quantum gates. Now the quantum gates are represented by this block diagram. Now can you say what is the difference between classical and quantum gate from this block diagram? Anyone?
two inputs and two outputs. Two input and two outputs. But in our classical gate, for example, if we are talking about the AND gate, there is two input and one output. This means in classical gate there have some information loss, है ना, कुछ information का loss हुआ है. हम दो इनपुट दे रहे हैं, हमें मिल रहा है एक इनपुट, इसका मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ है. वो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू इनपुट और टू आउटपुट है. दिस मीन्स ये जो गेट है, क्वांटम गेट है, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. और जो क्लासिकल गेट है वो रिवर्सिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्रिएट ए ट्रुथ टेबल फॉर दिस AND gate, so the truth table is 0, 0, 0 and 1. So if output is 0, you cannot say whether the input are 0, 0, whether the input are 0, 1, whether the input are 1, 0. With 100% certainty you cannot say what is the input. This means these gates are irreversible, but the quantum gates are reversible. From output you can judge the input with 100% certainty. So now we come to the single qubit quantum gates that are also known as a Pauli gates. That are also known as a Pauli gates. So first gate is a X gate. First gate is a X gate. It is a classical type NOT gates, analogous of a classical type NOT gate. Okay? तो ये कैसा गेट है, ये क्लासिकल नोट गेट की तरह वर्क कर. क्लियर? सो इट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस गेट इज दिस. सो इट इज ए इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. दिस इज आउटपुट. सो input, if input is a qubit 0, then output will be a qubit 1. It flips the 0 to 1 and 1 to 0. If input is a 1, then output is a 0. Then output will be a 0. This Hadamard gate on qubit 0. So that is H dot Q. H multiplied with the, so H is 1 upon root 2, 1, 1, 1 minus 1 multiply with the 1 G. Multiply with the 1 G. So 1 into 1, 1 plus 1 into 0, 0. So that is 1. 1 into 1 is 1. 0 into minus 1, 0. So that is, so this can be represented as a 1 upon root 2, 1 0 plus 0, 1. Clear? So it is 1 upon root 2, 0 plus 0 plus. So Hadamard gate create a superposition of 0 and 1. Any doubt in this calculation? Okay. Now there are some different gates that are also 1 qubit gate. First gate is known as a phase gate. That change the phase. So I have shown that psi is alpha 0 plus beta 1, alpha 0 plus beta 1, and vector representation is, that is qubit 0 and this is qubit 1 and this is our alpha 0 plus beta 1, alpha 0 plus beta. So this is X part, alpha is a X part and beta is a Y. So in physics we are discussing about the component dividation, है ना. तो जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है.
और ये वाला पार्ट क्या होता है साइन थीटा होता है। तो अल्फा इज ए कोस थीटा एंड बीटा इज ए साइन थीटा। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यही स्टेट मेरी कैसी हो सकती है, अल्फा की जगह अब क्या आ जाएगा कोस थीटा 0 प्लस साइन थीटा। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम स्टेट का, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम स्टेट। क्लियर। ये जो क्वांटम स्टेट है अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपको, ये 2 डायमेंशनल में ड्रॉ किया है, लेकिन 2 डायमेंशनल में नहीं होती, ये एक स्फीयर में होती है ना, गोले में होती है। तो गोले के सेंटर से उसके सरफेस तक जो वेक्टर आता है उसको हम एक क्वांटम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे फेज भी चेंज होता है, तो यहाँ पे फेज का टर्म आ जाता है ई आइटा। ये जो हमारी स्टेट है ये हमारी जनरलाइज 1 क्यूबिटर स्टेट है, जनरलाइज 1 क्यूबिटर स्टेट। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो हम ये वाली स्टेट्स लेके नहीं चलते, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड स्टेट है। हम किसको लेके चलते हैं, जनरलाइज स्टेट को लेके। जो चीज जनरलाइज स्टेट के लिए ट्रू होगा वो अदर स्टेट के लिए भी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फेज को आपने चेंज करना है देन वी आर यूजिंग द फेज की, देन वी आर यूजिंग द फेज। सो दीज आर द 1 क्यूबिट इंपॉर्टेंट गेट, है ना। ये लिमिट नहीं है, आप कितने भी बना सकते हो क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है, बट मोस्टली दीज गेट्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ quantum calculation. So one is the Hadamard gate, Pauli X gate, Pauli Y gate, Pauli Z gate, phase gate, and pi gate. So these are the 1 qubit gates. These are the 1 qubit gates. Now we come to the multi-qubit states. Now we come to the multi-qubit states. सर अप्लाई किस तरह होएगा? मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ਆਪਾਂ ਐਡਮਆਰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤੀ नो नो एवला ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਨਾ नहीं ना ई रेस पे होता थीटा ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ नीचे ही इफेक्ट करेगा। ओनली फेज ਨੂੰ चेंज करेगा, 0 1 ਨੂੰ कोई चेंज नहीं करेगा। एक बार रिकॉर्डिंग बंद करना, रिकॉर्डिंग सर लास्ट स्लाइड हाउ टू अप्लाई द गेट्स ऑन मल्टी क्यूबिटर सिस्टम। सो फॉर एग्जांपल आई हैव 3 इनपुट and I want to perform the AND operation of these 3 inputs. In classically what I will do, first I apply the AND gates on A and B, then I again apply the AND gate and this will be as a input. This will be as a input on second AND gate. So अगर if you want to create another then you have to require another AND. So by using this you can increase the size of your classical circuit. Now similarly if I want to perform the multiple operations on qubits, multi-qubit system, then we are using the multi-qubit gate. Then we are using multi-qubit gate. So for example I have a state that is alpha 0 0 plus beta 1. This is a standard bell type state. So this is first qubit, I represented it as a and this is second qubit that is represented by a B. This is first qubit that is represented by A and this is second qubit that is represented by a B. Now my A, I want to apply X gate on the first qubit and Z gate on the second qubit. I want to apply X gate on first qubit and Z gate on a second qubit. So what I will do? First I will change the state into matrix form. Okay. So जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का
रिक्वायरमेंट नहीं हुआ आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन अभी सिंपली है ना. सो दैट इज 1 0 0 0 प्लस बीटा 0 0 0 1. Okay, so our final state psi in the form of column matrix, that is alpha 0 0 and the beta. Clear? No doubt. Now we want to apply x gate on first qubit and y gate on z gate on second. So the x gate matrix representation is 0 1 1 0 and matrix representation of z gate is 1 0 0 minus 1 0 minus. So what I will do, I will perform the x tensor z, x tensor z. So this is 0 multiply with whole of this matrix. This is 1 1 0 0. This is 1 1 0 0 minus 1 and this is 0 1 0 0. Clear? Okay. So this will be 0 0 0 0 1 0 0 minus 1 0 0 minus 1 0 0 0. So this is a 2 qubit quantum gate. That 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो ये कैसा है 2 qubit क्वांटम गेट है, जो क्या करेगा फर्स्ट वाली क्यूबिट पे तो x ऑपरेशन करेगा और सेकंड वाली क्यूबिट पे क्या करेगा z ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ओके, सो हाउ टू यूज दिस. So this is x tensor z. So I will apply x tensor z on a state psi. So this is 0 0 1 0 0 0 0 minus 1 1 0 0 0 0 minus 1 0 0. This is our matrix representation of x tensor z. X tensor z. Now this psi will be alpha 0 0 and the beta. Alpha 0 0 and the now 0 0 0 0. So first is second is minus beta, third is alpha, and fourth one is beta, fourth one is beta, fourth one is beta. So this means it is okay. We can write it in the form of basis vector. In the form of basis vector we can write. Okay. So now this is minus beta 0 1 plus alpha 1 0. This is the new state, that is psi prime. Clear? Our psi will be alpha 0 0 plus beta 1. Alpha 0 0 plus beta. ये हमारी स्टेट थी, ये हमारी जजमेंट स्टेट है. देखो इस स्टेट में ये वाला जीरो किस में कन्वर्ट हो गया 1 में, ये वाला जीरो जीरो ही रहेगा क्योंकि जेड गेट में जीरो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये वाला 1 किस में कन्वर्ट हो गया 0 में क्योंकि एक्स गेट है, और ये वाला 1 किस में कन्वर्ट हो गया -1 में क्योंकि जेड गेट.
ठीक है, तो ये हमारी जो इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है माइनस बीटा 0 1, अब तो ठीक है, क्लियर है। तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, ये 0 0 ही रहा क्योंकि जेड गेट में 0 पे कोई फैक्टर नहीं था, और ये 1 किस में कन्वर्ट हो गया, -1 माइनस। ओके, so by using this technique we can apply multi-qubit gate. By using the tensor product we can apply the multi-qubit gates. Clear है बेटा? रफ कर दे। We have the state that is a 3-qubit state. That is a 3-qubit state. Clear? This state is called as a GHZ state. This state is called as a GHZ state. This is standardized, maximally entangled, pure 3-qubit state. So I want to apply. अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट क्यूबिट पे कुछ कोई ऑपरेशन नहीं हो, जैसी है वैसी रहे, कोई चेंजेज नहीं है। सेकंड क्यूबिट पे मेरा एक्स गेट लग जाए, है ना, और जेड क्यूबिट पे मेरा सॉरी थर्ड क्यूबिट पे मेरा क्या हो गया, जेड गेट इंप्लीमेंट। व्हाट आई विल डू, आई विल परफॉर्म आई टेंसर एक्स टेंसर, इससे जो मैट्रिक्स आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्यूबिट पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ बिकॉज वी हैव यूज्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड क्यूबिट पे एक्स होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड द एक्स गेट, और थर्ड क्यूबिट पे जेड ऑपरेशन होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड द जेड गेट। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन अ मल्टी क्यूबिट क्वांटम स्टेट। Now we come to the 2-qubit gate. First important gate is a control node gate. This is known as a control node gate. It is very important 2-qubit gate. So block diagram of this C node gate is 2 input and 2 output. 2 input and 2 output. Circuit diagram. This is the circuit diagram of circuit diagram of C node gate. C node इसका वर्किंग क्या है, अगर हमारे इस क्यूबिट को हम बोलते हैं कंट्रोल क्यूबिट, क्या बोलते हैं, कंट्रोल क्यूबिट, एंड इस वाले को क्या बोलते हैं, टारगेट क्यूबिट। इसको क्या बोलते हैं, टारगेट क्यूबिट। दो लाइन है, दो इनपुट लाइन है, फर्स्ट इनपुट लाइन को बोलता है कंट्रोल क्यूबिट एंड सेकंड को बोलते हैं टारगेट क्यूबिट। अगर कंट्रोल क्यूबिट 0 है तो टारगेट क्यूबिट पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, अगर ये 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तो 1 रहेगी। लेकिन अगर कंट्रोल क्यूबिट मेरी 1 है तो टारगेट क्यूबिट क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। अगर ये 1 है तो टारगेट क्यूबिट अगर 0 हुई तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 हुई तो 0 में। We have a 2 input, first is the control qubit and second one is the target qubit. The operation on target qubit depends on the control qubit. If control qubit is 0, then there is a no operation on target qubit. So if target qubit is 0, then output will be 0. If target qubit is 1, then output will also 1. But if control qubit is 1, if control qubit is 1, then we have to change the target qubit. So if control qubit is 1 and target qubit is 0, then 0 will be converted into 1.
and if it is 0 then it will if it is 1 then it will be converted into 0. So we have input in two form, control qubit and a target qubit. Control qubit and a if control qubit 0, target qubit 0 or can be a 1. Control qubit 1, then target qubit can be 0 or a 1. This can be input combination. Now in output, if control is 0, then control को जो चेंज करना ही है वो सिमिलर वही की आएगी क्योंकि ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है ना, सेम का सेम यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है. सो टारगेट विल नॉट बी चेंज क्योंकि कंट्रोल हमारा क्या है 0. कंट्रोल 0 है, टारगेट हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा. कंट्रोल हमारा 1 है, टारगेट हमारा 0 है, तो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1. 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1. कंट्रोल हमारा 1 है, टारगेट हमारा 1 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0. ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल नॉट गेट. नॉट ऑपरेशन लग रहा है टारगेट पे, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है कंट्रोल क्यूबिट पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल नॉट. अगर कंट्रोल क्यूबिट हमारा 0 है तो नो ऑपरेशन. अगर कंट्रोल क्यूबिट हमारा 1 है तो वी हैव टू फ्लिप द टारगेट क्यूबिट. सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इनपुट 0 0, आउटपुट भी आउटपुट 0 0, इनपुट भी 0. आउटपुट 0 1, इनपुट 0. आउटपुट 1 1, इनपुट 1 1, इनपुट 1 0. आउटपुट 1 0, इनपुट 1. Input 1. Now matrix representation. Now it will be a 4 qubit or 4 by 4 matrix because it is a 2 qubit quantum gate. So write 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1. Okay. So 0 0 entry. So that is 1. 0 1 entry, that is 1. 1 1 1 1 and 1 0. Next 1 0 and 1. All other are this is the matrix representation of a C node. This is the matrix representation of C1. कोई डाउट है बेटा? क्लियर? बेटा ये 0 0 है तो एंट्री यहाँ पे 1 आ गया. ये 0 1 है तो रो भी 0 1 और कॉलम भी 0 1, तो यहाँ पे 1 पे एंट्री आ गया. यहाँ पे 1 और 1 0 है तो रो तो 1 1 लेनी है और कॉलम कौन सा लेना है 1 0, तो यहाँ पे एंट्री है. ठीक है. ये है 1 0 1 1, तो रो कौन सी लेनी है 1 0 और कॉलम कौन सा लेना है 1 1, वहां एंट्री है, बाकी सारी. सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सी नोड गेट. और इस टाइप का कोई भी गेट क्लासिकल कंप्यूटिंग में नहीं, जो कंट्रोल कर पाए आपके इनपुट को. आपको ऑपरेशन कैसा करना है, कंट्रोल्ड करना है ना. तो एक्चुअली जो ऑपरेशन है ये वाला कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, A प्लस बी इंटू मोड 2, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है. देखो जब 0 0 था 0 प्लस 0 0 0 मोड 2 0, इसलिए हमें टारगेट पे क्या मिल गया 0 मिल गया. जब हमारा था 0 1 तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 मोड 2 दैट इज
1, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। 1 0 that is 1 mod 2 that is equal to 1 1 1 1 plus 1 that is 2 2 mod 2 that is equal to 0 रिमाइंडर 0 आएगा, तो that's why this is 0। तो मॉडुलो अर्थमेटिक को हमने सिंपल मैट्रिक्स से इंप्लीमेंट कर दिया, सिंपल मैट्रिक्स का यूज करके हमने मॉडुलो अर्थमेटिक को यूज कर दिया है ना, मोड 2। क्लियर है? तो ये हमारा है सी नोट गेट। So this is control node gate. This is a standardized gate, but we can also create a control Z gate. So at target we perform the Z operation. Okay. तो फर्स्ट हमारा कंट्रोल क्यूबिट हो गया, सेकंड हमारा टारगेट क्यूबिट हो गया। टारगेट पे हमें क्या करना है, Z लगाना है। तो इसमें क्या होगा, अगर कंट्रोल क्यूबिट 0 है तो टारगेट पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर कंट्रोल क्यूबिट मेरी 1 है तो टारगेट में क्या होगा, अगर 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तो -1 हो रहेगी। ठीक है, तो दैट इज द कंट्रोल Z गेट। दैट इज द तो वी आर क्रिएटिंग कंट्रोल Z गेट। कंट्रोल Z गेट में क्या है कि ये हमारी कंट्रोल क्यूबिट है, ये हमारी टारगेट क्यूबिट है। अगर मेरा कंट्रोल क्यूबिट 0 है, कंट्रोल क्यूबिट 0 है तो Z में कोई ऑपरेशन नहीं आएगा, टारगेट में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर मेरा कंट्रोल क्यूबिट 1 है तो टारगेट क्यूबिट पे क्या लगेगा, Z गेट लगेगा। Z गेट क्या करता है, अगर 0 है तो 0, लेकिन 1 है तो -1। तो यहाँ पे कंट्रोल 0 है तो टारगेट पे कोई ऑपरेशन नहीं आया, कंट्रोल 0 है टारगेट पे कोई ऑपरेशन नहीं आया। कंट्रोल 1 है, अब टारगेट पे ऑपरेशन करना है, तो टारगेट क्या है, 0 है तो Z में 0 0 ही रहता है। क्लियर? अब कंट्रोल 1 है, टारगेट भी 1 है, तो टारगेट पे अभी मेरे को क्या करना है, Z लगाना है। तो जब Z 1 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो दैट इज द कंट्रोल Z गेट। तो इस टाइप से आप कोई भी कंट्रोल गेट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्रोल गेट है। नेक्स्ट इज द 3 क्यूबिट गेट। वी हैव स्टडीड अबाउट द 2 क्यूबिट गेट, है ना, मल्टी क्यूबिट गेट। टेंसर प्रोटेक्ट करके कितना भी बड़ा गेट आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ वी कम टू द थर्ड one, that is the 3 qubit gate. It is also known as a Toffoli gate. It is also known as a Toffoli gate. In this gate, we have a 2 control line and 1 target line. 2 control line and 1 target line. If both control line are 1, then we have to flip the target. अगर A1 और A2 दोनों 1 है तभी हमें B को क्या करना है, फ्लिप करना है, 0 से 1 में, 1 से 0 में। अदरवाइज हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। लाइक अगर ये दोनों 0 है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, 0 1 है कोई ऑपरेशन नहीं होगा, 1 0 है कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर A1 और A2 दोनों 1 है तब हमें क्या करना है, B को चेंज करना है। 0 है तो 1 में, 1 है तो 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है भाई। ठीक है, 11 बजे तक हम करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे थोड़ा सा।
So in Toffoli gate we have a 2 control line and 1 target line and 1 target. So input A1, A2 and B. Okay, these both are controlled and this is a target. अब मैं वो सिंबल नहीं लगा रहा कैट का, ठीक है, कैट का सिंबल नहीं लगा रहा, मैंने थोड़ा इजी करने के लिए, बट यहाँ कैट का सिंबल है. So this is our input. We have a 3 input, so 2 raised to power 3, 8. तो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो 8 कॉम्बिनेशन ये है ना. अगर क्यूबिट की फॉर्म में करें तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा. ठीक है. नाउ आउटपुट. आउटपुट में भी हमें 3 आउटपुट मिलेंगे. ये दोनों आउटपुट पे तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा. बोथ आर 0, नो ऑपरेशन ऑन बी, है ना. बोथ आर 0, नो ऑपरेशन ऑन बी. 0 1 कोई ऑपरेशन नहीं करना है, 0 1 कोई ऑपरेशन नहीं करना, 1 0 कोई ऑपरेशन नहीं करना, 1 1 कोई ऑपरेशन नहीं करना. ठीक. थर्ड वाले पे, टारगेट वाले पे, बी पे. नाउ इट इज 1 1, देन दिस 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1. This is 1 1, then this 1 will be converted into 0. This one will be converted into 0. Okay? Yes. So this is the truth table for Toffoli gate. This is the truth table for Toffoli gate. It has a classical counterpart which can be used to simulate the standard Boolean operation. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी क्लासिकल सर्किट को इस गेट का यूज करके बना पाऊं तो जो काम क्लासिकल कंप्यूटर पे हो सकता है वो क्वांटम कंप्यूटर पे हो जाएगा. अगर मैं किसी भी क्लासिकल सर्किट को क्वांटम गेट्स की फॉर्म में बना पाऊं तो जो काम क्लासिकल कंप्यूटर करता है वो क्वांटम भी करेगा. Yes. है ना. जब ए और बी दोनों 0 0 थे तो टारगेट मेरे को क्या मिल रहा है 0. A1 A2 और यहाँ पे B. जब दोनों 0 0 से तो टारगेट क्या है 0. ये 0 1 है तो टारगेट क्या है 0 है. सिर्फ यही देखना. ये 1 0 और टारगेट ये 1 1 तो टारगेट ये किसका टोटल एंड गेट. एंड गेट. अगर आपने एंड गेट सॉरी एंड गेट का, ठीक है. और अगर आप दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को लो तो किसका टेबल बनेगा 0 0 है 1 आ रहा है, 0 1 है 1 आ रहा है, 1 0 है 1 आ रहा है, 1 1 है 0 आ रहा है. किसकी टेबल है. और नैंड क्या होता है यूनिवर्सल गेट. So by using Toffoli gate you can create a NAND gate and every classical circuit can be created by the NAND gate. ठीक है. तो जो भी सर्किट क्लासिकल कंप्यूटर का है वो क्वांटम में सिमुलेट किया जा सकता है Toffoli गेट के का यूज करके. क्लियर है.
तो जो भी वर्क हम क्लासिकल कंप्यूटर में कैलकुलेशन जो भी करते हैं वो क्वांटम में इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये सिमुलेशन हम कर सकते हैं, क्लियर। नाउ if we want to create a quantum circuit, so there are some input lines and there are some unitary operators that are represented in the form of a quantum gate. So a series of single qubit and C0 gate we can create any multi-qubit logic gate और ये multi-qubit quantum gate, ठीक है। इस टाइप से आपको मल्टीपल गेट लगाने हैं तो आप कोई भी सर्किट बना सकते हो। तो ये जो सर्किट है इसके लिए ये ट्रुथ टेबल बना है, ये वाला ट्रुथ टेबल इस क्वांटम सर्किट के लिए, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ गेट, दैट इज द स्वैप गेट, दैट इज द स्वैप गेट। सो बेसिकली इट इज मेड बाय 3 C0 gate, first C0 gate, second C0 gate and a third C0. This is the matrix representation of this swap gate. What is use of this swap gate? It will change the A वाले को B में कन्वर्ट कर देगा, B वाले को A में कर देगा, स्वैपिंग के काम आता है। हम C लैंग्वेज में स्वैप का फर्स्ट प्रोग्राम जो बनाते हैं वो स्वैप पे बनाते हैं ना, थर्ड वेरिएबल लेके A और B को स्वैप करना है, हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके और आपस में A और B को स्वैप करते हैं। सिमिलरली अगर क्वांटम में आपको स्वैप करना है तो आप इस गेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये कंट्रोल, ये टारगेट, ठीक। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा कैसे काम करेगा। So, for example, this is 0 and this is a 1. This is 1. Clear? So, this is our first control gate. This is our first control node gate. Clear? So, this is control and this is a target. तो कंट्रोल यहाँ पे जाके 0 रहेगा और टारगेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कंट्रोल क्यूबिट क्या था, 0 था, तो टारगेट में कोई चेंज नहीं आया। इसके लिए अब ये क्या बन गया, कंट्रोल बन गया और ये क्या बन गया, टारगेट। अब कंट्रोल 1 है तो टारगेट क्या होगा, स्लिप चेंज होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1। नाउ अब इसके लिए कंट्रोल कौन है, 1 और टारगेट कौन है, 1। तो जब कंट्रोल 1 होता है तो टारगेट क्या होता है, स्लिप होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और ये क्या रहेगा, 1। तो इनपुट क्या था 0 1, अब आउटपुट क्या है 1 0। तो बाय यूजिंग दिस गेट वी कैन परफॉर्म द स्वैपिंग। ओके, so quantum circuit is a sequence of unitary operation and a measurement on any n qubit state. So there is a n qubit input state and n qubit output state. We are using the some sequence of unitary operation. So I have already discussed about this circuit.
So this is a simple topology gate. Okay, simple topology. Now I have fixed this value as a 1. I have fixed this value as a 1. मैंने यहाँ पे कौन सा क्यूबिट दे दिया? 1 क्यूबिट दे दिया. और ये दोनों क्यूबिट कैन बी 0 और 1, कोई भी वैल्यू हो सकती है. That's why I am using A and B. So इनपुट मेरे पास क्या होगा? A, B and C. C हमारा 1 ही है. ठीक है. तो ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन ये हमारा 1 ही होगा. ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये हमारा 1 ही होगा. फर्स्ट कैन बी 1, सेकंड कैन बी 0, थर्ड विल ऑलवेज 1. फर्स्ट 1, सेकंड 1 और थर्ड विल बी 1. क्लियर? नो डाउट. अब हमारा जो टफोली गेट है वो इसमें ये दोनों कंट्रोल होती हैं और ये हमारी क्या होती है? टारगेट. अगर ये दोनों 1 है तभी इसको फ्लिप करना है, अदरवाइज हमें इसको फ्लिप नहीं करना. तो यहाँ पे ये दोनों 1 है, तो ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0. यहाँ पे जो हमारा C आउटपुट है इसमें, बाकी सब जगह क्या रहेगा? 1 1 रहेगा. ओके, बाकी सब जगह क्या रहेगा? 1 1. तो ये किसकी टेबल है? NAND की. ये किसकी टेबल है? NAND. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टफोली गेट में टारगेट पे 1 क्यूबिट इनपुट दे देना है. जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? NAND गेट के रिक्वेस्ट में मिलेगा. अगर यहाँ मैं 0 दे देता तो कैसा मिलता? AND गेट की तरह. So by using topology gate you can create any classical Boolean gate. Clear है? अब हम आते हैं क्लासिकल हाफ एडर. हाफ एडर में हमारे यहाँ क्या होता है? एक एक्योर होता है और एक यहाँ पे क्या होता है? एंड गेट. ठीक है. दो हमारे पास इनपुट होते हैं, ए एंड बी. वो था 0, सम 0 होता है, कैरी भी 0 होता है. 0 1 है तो सम 1 होता है, कैरी 0 होता है. 1 0 है तो सम 1 होता है और कैरी क्या होता है? 0 होता है. 1 1 है तो सम 0 होता है और कैरी क्या होता है? 1 होता है. सो दिस इज ए क्लासिकल हाफ एडर. ओके, this is the, if we want to implement half adder using the quantum circuit. So this is the half adder by using the quantum gates. हमने एक टफोली गेट लिया है और एक सी नोट गेट लिया है. यहाँ पे हमें सम मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कैरी मिलेगा. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कैरी. तो इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं या आप खुद बना लोगे? हाँ? कर लिए. तो यहाँ हमने क्या कर दिया है? एक सी नोट गेट और लगा दिया. एक सी नोट गेट और लगा. ठीक है. और ये हमारा इनपुट है सी. ये हमारा इनपुट है सी. ठीक है. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, कैरी हमारा 0 है स्टार्टिंग में. ठीक. दोनों 0 है तो इस पे कोई ऑपरेशन नहीं होना है. तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा. क्लियर? ये यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा. अब ये सी नोट गेट है. सी नोट का कंट्रोल 0 है तो 0. टारगेट पे भी कोई ऑपरेशन नहीं. तो सम हमारा क्या है? हमें 0 मिलेगा. सम हमें क्या मिल गया? 0. क्लियर? अगर मैं 0 1 लेता, इसको एक बार देख लो ना. 0 1 लेता है इनपुट. ठीक. 0 और 1 है इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. ये 0 का 0 रहेगा टॉपोली में. यहाँ हमारा क्या है? 0 और यहाँ हमारा क्या है? 1. यहाँ हमारा क्या है? 1. अब कंट्रोल में 0 हो, टारगेट में 1 हो तो कोई ऑपरेशन नहीं करना. 1 मिल गया. जब हमने 0 1 इनपुट कराया था तो हमें सम क्या मिल गया? 1 मिल गया. क्लियर है? हम क्या करते हैं? 1 0 कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0. दोनों जो कंट्रोल क्यूबिट है वो कैसी है? 1 0 है. दोनों 1 नहीं है. तो यहाँ पे मेरे को सी पे कोई ऑपरेशन नहीं करना. तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया. यहाँ पे कंट्रोल में 1 है और टारगेट में क्या है? कंट्रोल में 1 और टारगेट में क्या है? 0. तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 1. क्योंकि कंट्रोल में 1 है इसलिए टारगेट मेरा क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो गया.
तो जब आप 1 0 दे रहे हो तब भी हमें सम कैसा मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लास्ट ऑप्शन, अगर मैं 1 1 करता, अगर मैं 1 1 दोनों 1 है, इसका मतलब ये वाली क्यूबिट को मेरे को क्या करना है, फ्लिप करना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटम स्टेट, प्योर एंड मिक्स्ड क्वांटम स्टेट। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड क्वांटम स्टेट? So before going to density matrix, first we will discuss about the trace of a matrix. So the trace of a matrix is the sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements. A0 plus A11 plus A2. And there are some properties of trace, like trace of X into A. There is A is a matrix and X is a scalar. Plus Y into B. This can be written as a X trace A plus Y trace B. Similarly, trace of AB is equal to trace of BA. So trace of ABC is equal to trace of CAB. Commute as well as associate. Now, trace of UA U data. This is a unitary operation. So if we perform the unitary operation on any operator, trace will not be changed. Trace will not be changed. And trace can also be represented in the form of computational basis. In the form of computational basis. So, for example, I have a operator. So this is A11, A12, A21, and A2. So, as we know, it is 0, 1, 0, 1. Okay. So this is the expectation value of 0 A 0. This is the expectation value 0 A 1. This is the expectation value 1 A 0, and this is the expectation value 1 A 1. Okay. So sum of trace is summation of diagonal element. So trace of A is equal to 0 A 0 plus 1 A 1, 1 A 1. So we can write summation of I A I, where I are computational basis. Means for qubit 0 it is a 1 0, and for qubit 1 it is a 0. So trace can be represented in the form of a orthonormal basis vector. Orthonormal basis vector. So concept of the statistical mixture of a state. So consider a quantum system. If we have complete information about the system, the state of system can be described by a state vector that is a graph function and denoted by a psi. Such a state is called as a pure state. So I have a system. This is a system, and this is a psi A. This is a state, that is a quantum state, and complete information about this system is given by this state. Then this state is called as a pure state. ठीक है? अगर मेरे को इस स्टेट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सिस्टम के बारे में, तो इस स्टेट को मैं क्या बोलूंगा? प्योर स्टेट. ठीक है? कंप्लीट एक स्टेट से ही सब इंफॉर्मेशन मिल जाए. It happens that we do not know the exact state vector of a system. In this case, we say we have incomplete information about the system. Sometime क्या हुआ कि मेरे पास एक सिस्टम B था, क्लियर? उसकी जो स्टेट थी वो साई B थी, जिससे मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही. लेकिन क्या हुआ, इनमें इवैल्यूएशन हो गया, ये मर्ज हो गए आपस में, है ना? ठीक है. तो जो नया सिस्टम बना वो ना तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना इस सिंगल से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सिस्टम का मिक्सचर हो गया. क्लियर है? तो किसी भी सिस्टम के लिए जो क्वांटम स्टेट अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्योर क्वांटम स्टेट बोलते हैं. बट इन जनरली क्या होता है कि हमारा सिस्टम किससे इंटरेक्ट करता है? इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है.
जब वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो प्योर सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिक्स्ड सिस्टम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिक्स्ड सिस्टम। सो वी रिक्वायर सम another tool to represent the this type of a system, this type of system. Okay, so more generally in incomplete information usually present itself following way. Okay, so हमारा जो सिस्टम है ये हो सकता है कि P1 प्रोबेबिलिटी के साथ psi1 में हो, P2 प्रोबेबिलिटी के साथ psi2 स्टेट में हो, P3 प्रोबेबिलिटी के साथ psi3 स्टेट में हो, एंड Pn प्रोबेबिलिटी के साथ psi n स्टेट में। क्लियर है? सो within a single state we cannot find the complete information about the system. We require all these states, then we can find the complete information about the system. Okay, so this type of scenario is called as a statistical mixture of the states. So we then say the statistical mixture of states psi1, psi2, psi-n with probability P1, P2, Pn. So a statistical mixture of two or more than two different states is called as a mixed state. So it is called as a mixed state. So in general, quantum state can be either pure state or a mixed state. ठीक है? So जैसा मैंने ये लिखा psi अल्फा 0 प्लस बीटा 1, अगर मेरे को इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही थी सिस्टम की तो ये स्टेट कैसी है? प्योर स्टेट। लेकिन अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेरे को किसी भी सिस्टम का तो वो क्या है? हमें और भी रिक्वायर्ड है, तो वो मल्टीपल स्टेट से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो जो फाइनल स्टेट बनेगी सिस्टम की वो क्या होगी? मिक्स्ड स्टेट। क्लियर है? सो our system consists a large number of particles. Our system itself can be a collection of a subsystem. This is called as a ensemble. हमारे पास कोई सिस्टम है वो अकेला भी हो सकता है या वो मल्टीपल सब सिस्टम का कलेक्शन भी हो सकता है। If there have a collection of multiple subsystem, then it is called as a ensemble system. So instead of being a single state, our ensemble can be found in more than a one state. तो अगर हमारा complete information एक ही स्टेट से मिल रहा है तो वो क्या है? सिंगल स्टेट सिस्टम है, वो स्टेट क्या है? प्योर स्टेट है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम मल्टीपल सब सिस्टम से मिलकर बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिस्टम। So we required multiple states to describe the system, to collect the complete information about the system. In such scenario, the final state of system is known as a mixed state. So that begin with the pure state. Consider an example. Given an object is a state psi I. If all the objects are in same state, then ensemble is represented by a pure state. Then to make probabilistic statement, the whole ensemble identifies to prepare the system. This means, like you have a state psi that is Cn n. Okay, n can be 0, 1, 2, any system. So it will be a C0 0 plus C1 1, for example, into 1 qubit system, in 1 qubit system, and we are getting complete information about the system. This time this state is called as a pure state. This state is called as a pure state. Now there is another alternative representation of the quantum state. So first is the, we can write quantum state as a form of linear superposition of the computational basis. Second representation, every quantum state can be represented as a vector in a 2-dimensional, 3-dimensional, n-dimensional vector space. Third representation, every state can be representing in the form of a matrix that is called as a density matrix, and sometimes it is called as a density operator. Why we are using density operator? Because in pure system we have no problem, we can do every calculation. But if the system is mixed, then how to represent the state of a system? ठीक है? अगर हमारे पास सिंगल स्टेट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, प्योर स्टेट है, हम उस पर कोई भी क्वांटम गेट लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, इजीली लग जाएगा। जो हमने लास्ट
2-3 लेक्चर्स में देखा है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम ही मल्टीपल स्टेट से मिलकर बना हुआ है तो उसमें हम क्या करें? ठीक है, तो हमें एक अल्टरनेटिव वे चाहिए सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसको रिप्रेजेंट करने का अल्टरनेटिव वे क्या है? डेंसिटी ऑपरेटर है। So it is a density operator. So for pure system, the density operator rho is represented by a rho. Psi cat psi. This is the formula to find the density matrix for any state, for any pure state. Clear? So, for example, my systems is alpha 0 plus beta 1. This is the quantum state for my system. Now I want to find the density matrix for this system or for this state. So that is psi cat psi na. So alpha 0 plus beta 1. Okay. Now alpha star, because it may be a complex number, so we require complex quantity. 0 plus beta star 1. Okay. Now alpha into alpha star, that is 0 0. सर वो मैं समझ गया हाँ जी फ्राइडे हाँ वो तो Now alpha beta star 0 1. Now beta alpha star 1 0. Now beta star 1 1. Clear? So the matrix can be represented rho is equal to 0 1 0 1. So this is entry for 0 0. Alpha into alpha star is mod of alpha square. कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता है? नॉर्म मिल जाता है। जैसे a प्लस आइटा b है, अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं a माइनस आइटा b से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर प्लस नाउ 0 1, so alpha beta, now beta alpha, now beta. So this is the density representation for a 1 qubit quantum state. ओके, तो जब भी आप क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च करोगे तो स्टेट पे आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि हमें जनरलाइज सिस्टम लेना है। तो जनरलाइज सिस्टम कैन बी ए प्योर, कैन बी अ मिक्स्ड, क्योंकि इन्वायरमेंट का तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में ही वर्क करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑपरेटर की फॉर्म में ही वर्क कर। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि सर इस पे गेट कैसे इंप्लीमेंट होगा? कोई गेट का ऑपरेशन लगाना तो कैसे होगा? तो फॉर एग्जांपल साई पे हमने कैसे लगाया था? एक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। जब हम रो पे करेंगे तो क्या करेंगे? एक्स रो एक्स डायरेक्ट, ये मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो हमें ऑपरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ एक्स 2 बारी क्यों लिया? क्योंकि स्टेट भी हमने 2 बारी ले ली, एक बार कैट की फॉर्म में, एक बार दैट्स व्हाई एक्स रो एक्स डेक। So there are some properties. So the density matrix rho for a pure state psi can be given as a rho is equal to psi cat alpha. These are some properties. Rho square is equal to rho. अगर आप इसको रो इंटू रो करोगे, रो स्क्वायर फाइंड करोगे, तो वो हमें क्या मिलेगा? रो ही मिलेगा। रो डैगर इज इक्वल टू
रो, दिस मीन्स ये हार्मिशन होती है। डेंसिटी मैट्रिक्स ऑलवेज कैसी होती है? हार्मिशन होती है। ट्रेस ऑफ रो इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। देखो अल्फा स्केल प्लस बीटा स्केल नॉर्मल कंडीशन है हमारी किसी भी स्टेट के लिए, ये माने रो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो ये कैसी होगी? पॉजिटिविटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? सो we have a state a system A that is represented by a psi1 and for clear understanding I have given a red color है ना? Second system represented by a green color, so state of a second system is a psi2. Third system is represented by a blue color and state of this system is a psi3. अब क्या हुआ? ये तीनों आपस में मिक्स हो, ठीक है, मिक्स हुए तो हमें क्या मिला? नया सिस्टम मिल गया। अब नए सिस्टम में रेड बॉल भी है, ग्रीन बॉल भी है और ब्लू बॉल भी है। मैं अकेले साई1 से नए सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं फाइंड कर सकता, अकेले साई2 से मैं उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकता, अकेले साई3 से मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो आई हैव ए मल्टीपल स्टेट्स विद सम प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ये P1 प्रोबेबिलिटी से मिक्स हुआ, ये P2 से, ये P3 प्रोबेबिलिटी। तो आई हैव रिक्वायर्ड सम स्टैंडर्डाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज द डेंसिटी ऑपरेटर। तो डेंसिटी ऑपरेटर कैसा होना? रो इज इक्वल टू समीशन आई पी आई साई आई साई। So this is the density representation of a mixed state. Density representation of a mixed state. Okay. So ये A सिस्टम था जिसकी स्टेट क्या थी? साई A। ये B सिस्टम था जिसकी स्टेट थी साई B। ये C सिस्टम था जिसकी स्टेट थी साई C। ओके। ये P1 प्रोबेबिलिटी से, ये P2 प्रोबेबिलिटी से और ये P3 प्रोबेबिलिटी से आपस में मिक्स होकर नया सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो इस नए सिस्टम की जो स्टेट होगी वो क्या होगी? रो इज इक्वल टू P1 साई A प्लस P2 साई B प्लस P3 साई C। ओके, ठीक है। अगर मैं ABC की जगह 1 2 ले लूं, 1 2 3, यहां भी क्या देगा? 1 1 2 2 3 3। So it is a summation of I P I psi I। So this is the row for mixed state. This is the row for mixed state. क्लियर है? डेंसिटी मैट्रिक्स प्योर स्टेट की कैसे निकलती है और मिक्स स्टेट की कैसे निकलती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब सिस्टम एक बार मिक्स हो गया ना, फिर आप उसको वापस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अनमिक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आपका सिस्टम मिक्स हो गया, आप उसको वापस अनमिक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो डेंसिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो ही इसको पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। So a state describe the state vector phi called as a pure state if it has a complete information about the system. But if we have a qubit which is known be in a pure state phi1 and with probability p1 and in phi2 with probability p2, this time it is called as a mixed state. So our system in phi1 with p1, in phi2 with p2, in phi n with the pn. So a probabilistic distribution of the pure state is called as a mixed state. So this mixed state can be represented in the form of a density matrix. In the form of density matrix. So that is rho Pk, psi k, and k is 1 to d. D means number of system. जितने भी उसमें मान दिए हैं, है ना? So
सिस्टम स्टेट जीरो में है विद प्रोबेबिलिटी हाफ, ओके, और स्टेट जो क्यूबिट 1 है उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हाफ है ना। तो मैंने इसका डेंसिटी मैट्रिक्स निकाला है, क्या होगा P1 psi1 प्लस P2 psi2 clear, this is the rho, so rho will be P1 क्या है हाफ, psi1 क्या है 0 ओके, प्लस P2 क्या है हाफ, psi2 क्या है 1, तो हाफ कॉमन आ जाएगा 0 प्लस 1, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1, so 0 so 1 1 1, so this is the density matrix for the mixture of 0 and 1 with the probability of half, clear है। अगर हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ 0 और हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ 1 का मिक्सचर करें तो हमारे पास क्या स्टेट आएगी, ये 1 स्टेट है, ठीक है। बट जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो क्या होना चाहिए 1 होना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर दीज टू स्टेट, these two states, so first state is 0 plus 1 with half probability and second state is 0 minus 1 with the half probability, so first state psi1 is 0 plus 1, this state is not a normalized state, ये स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इससे कंपेयर करो तो अल्फा क्या है 1 है, बीटा भी क्या है 1 है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर क्या है 2 है, तो नॉर्मलाइज कंडीशन में क्या होना चाहिए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर शुड बी इक्वल टू 1, should be equal to 1, this means we will divide it with the norm, okay, we will divide it with the norm, so psi1 is equal to 1 upon root 2 0 plus, so this is the normalized state of the system, this is the normalized state of the system, and the probability is half, probability is half. Similarly the second state, that is 1 upon root 2 0 minus 1 with probability half, clear। Now we have a two states of a system with the psi1 के पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है सिस्टम की, psi2 के पास भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है सिस्टम की, दोनों को अगर यूज करें तब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगा, है ना। So we have to represent each state in the form of a density matrix, तो जो ये फॉर्मूला यहीं पे हम रखेंगे ना, that is P1 psi1 plus P2 psi2, so half 1 upon my root 2 0 plus 1 into 1 upon the root 2 bra 0 bra 1, okay, then plus P2 is also half, then 0 1 upon the root 2 0 minus 1 cat में into 1 upon the root 2 0 minus 1 bracket, ठीक, so half is common, so that is now this is half, 0 with 0 0 with 1 1 with 0 and 1 with similarly half 0 with
Okay, so half is again common, so it is 1 by 4. 1 by 4. Now this is 0 and this is 0. 2 0 2 clear. This is positive, this is negative, cancel. This is positive, this is negative, cancel. Okay, this is 1 1 1 1, so 2. Okay, 2 को कॉमन लेंगे 1 में. अरे ये तो वही मैट्रिक्स आ गया जो प्रीवियस एग्जांपल में आया. ठीक है, तो अगर हमें डेंसिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैं नहीं बता सकता कि इसकी डेंसिटी मैट्रिक्स है या इस कॉम्बिनेशन की डेंसिटी मैट्रिक्स है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट परफॉर्म द अनमिक्सिंग. ठीक है, दो अलग अलग एग्जांपल लिए हमने, लेकिन हमारा जो डेंसिटी ऑपरेटर है वो क्या है, सिमिलर है. तो दैट्स व्हाई हम नहीं कह सकते कि कौन से कॉम्बिनेशन का ये डेंसिटी मैट्रिक्स है. Now how can we perform the unitary operation on a density matrix? On a density we have a state psi. For example, I want to perform some unitary operation that is u. That is u. Clear? So new state will be a psi prime that is u into psi. U into psi. Clear? If I come to the representation in the form of a density operator. So our state is, initial state is psi. So rho will be psi cat psi. Clear? Psi cat psi. After the operation, rho will be psi prime cat psi prime. Clear? Psi prime is a u psi. Psi prime is a u. So that is u psi. Okay, u psi. And this is bra form. So bra form जब करेंगे तो ये u dagger हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, bra बन जाएगा. So u dagger. Clear? ये क्या है, रो. So it is u rho u. Okay, u rho u. Clear? तो अगर हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल हम देख रहे थे, हमारे पास कोई स्टेट थी साई, उसमें हम एक्स ग्रेड लगा रहे थे तो डायरेक्ट एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर डेंसिटी मैट्रिक्स के रूप में लेके आएंगे तो हमें क्या करना है, एक्स रो एक्स डेग, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा. ओके, ये डेरिवेशन में कोई दिक्कत है? ठीक है, इस टाइप से हम यूनिटरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वांटम स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर. ठीक है, तो अभी तक हम जो देख रहे थे, हम देख रहे थे कि क्वांटम स्टेट्स क्या हैं, है ना. फिर उनसे हमने क्वांटम गेट्स अप्लाई किए, फिर हमने मल्टी क्यूबिट क्वांटम गेट की बात की, फिर हमने कंट्रोल नोट गेट की बात की, टोपोली गेट की बात की. तब हम क्या कर रहे थे, गेट को डायरेक्ट किस पे लगा रहे थे, क्वांटम स्टेट पे लगा रहे थे, उसको कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके. लेकिन अब ये था कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करती है तो ठीक है, वो प्योर स्टेट है, हम वो कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा सिस्टम बना ही मल्टीपल स्टेट से है तो हम उस पर डायरेक्ट गेट को अप्लाई नहीं कर सकते. तो हमें कह रही है एक अल्टरनेटिव वे चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो वो अल्टरनेटिव वे क्या है, डेंसिटी ऑपरेटर है. तो डेंसिटी ऑपरेटर प्योर स्टेट के लिए भी बन सकता है और मिक्स स्टेट के लिए भी बन सकता है.
प्योर स्टेट के लिए जब हमने बनाया तो हमें पता है एक ही स्टेट है, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, तो p की वैल्यू 1 होगी, दैट्स व्हाई साई कैट साई ब्रा। अगर मल्टीपल स्टेट होती तो p1 साई 1 कैट साई 1 ब्रा प्लस p2 साई 2 कैट साई 2 ब्रा एंड सो ऑन, है ना। तो इस टाइप से हम उसका डेंसिटी बना लें। अब क्वेश्चन आया कि किसी सर ये तो ठीक है कि ये हमारी स्टेट थी, स्टेट को आपने डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन उस पर अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है, कोई ऑपरेटर परफॉर्म करना है, उसको कुछ चेंज करना है 0 से 1 में, 1 से 0 में, कोई क्वांटम गेट ऑपरेट करना, तब क्या करेंगे। तो जैसे ये हमारा स्टेट साई है, इस पे हम क्वांटम गेट, जिसको मैंने यूनिटी ये एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी होता है, मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यू डॉट साई। तो नई जो स्टेट होगी वो क्या होगी, साई प्राइम। नई जो स्टेट होगी साई प्राइम। जो हमारी इनिशियल स्टेट थी उसके लिए डेंसिटी मैट्रिक्स क्या होगा, साई कैट साई ब्रा, जिसको मैंने रो से रिप्रेजेंट कर दिया। नए के लिए क्या होगा, साई प्राइम, रो प्राइम क्या होगा, साई प्राइम कैट साई प्राइम। तो साई प्राइम क्या है, यू साई, है ना, और साई प्राइम का जब हम ब्रा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यू डैगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साई कैट यू डैगर, तो साई साई हमारा क्या है, रो, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। So similarly, for mixed state, first we perform the U, then we write the rho, and then the U dash, then U dash. So third and fourth we have already done. Now we will calculate the density operator for this one, है ना। We have a qubit 0 with probability 1 by 4. Qubit 1 is with probability 1 by 4. 0 plus 1, the normalized form of this 1 upon my root 2, 0 plus 1. That is also with probability 1 by 4. This is 0 minus 1. That can also be written as a 1 upon the root 2, 0 minus 1. This is its probability 1 by 4. Okay. So this is our psi 1, this is our psi 2, this is our psi 3, this is our psi 4. This is probability P1, this is probability P2, this is probability P3, this is probability P4. This complete set of state describe the describe the complete system. Okay. So how can we represent these state in a integrated form? So we can use the density operator. So density operator will be a rho P1 psi 1 plus P2 psi 2 and P3 psi 3, P4 psi 3, psi 4 psi 3. So that is 1 by 4, 0 0 plus 1 by 4, 1 1 plus 1 by 4, 1 upon my root 2, 0 plus 1 into 1 upon my root 2, 0 plus 1. Similarly, 1 upon 4, 1 upon the root 2, 0 minus 1 into 1 upon root 2, 0 minus 1. Okay. So when we solve this system, we again get 1 upon my 2, 1 0 0 1. This is the density matrix for ensemble of these quantum states. ठीक है, मैंने डेंसिटी मैट्रिक्स निकाला, आ गया सबको। अब आपको ऑपरेशन लगा के दिखाते हैं। अगर इस पे एक्स गेट लगाना है मेरे को, कैसे लगेगा। तो
एक्स गेट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आता है? 0 1 1 0। ओके, अगर मैं इसका डैगर निकालूं तो डैगर क्या होता है? ट्रांसपोज ही हो गया, क्योंकि ये रियल मैट्रिक्स है तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। अब मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा? एक्स रो एक्स डैगर। तो एक्स क्या है? 0 1 1 0। रो क्या है? 1/2 0 0 1/2। और एक्स डैगर क्या है? 0 1 1। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डेंसिटी मैट्रिक्स होगा वो रिजल्टेंट डेंसिटी मैट्रिक्स होगा आफ्टर ऑपरेटिंग द एक्स गेट। इस टाइप से हम मिक्सर वाले सिस्टम पे काम कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेंसिटी। ठीक है, जो स्टेट वाला हमने पढ़ा था वो सिर्फ प्योर सिस्टम के लिए था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि प्योर सिस्टम में मल्टीपल सिस्टम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑपरेटर की तरफ मूव करना। ठीक है, नाउ how can we find whether this state is a pure state or a mixed state? If the trace of row scale is equal to 1, then the state will be a pure state. And if the trace of row scale is less than 1, then it will be a mixed state. Then it will be a mixed state. So ये tool है pure state और mixed state को find करने। ठीक है, trace of row scale is equal to 1, then it will be a pure state, and if trace row scale is less than 1, then it will be a mixed state. Okay, so अगर हमें मल्टी क्यूबिक स्टेट बनाना था तो हम क्या कर रहे थे? psi1 और psi2 का टेंसर प्रोडक्ट कर देते थे तो हमें क्या मिल जाता था? मल्टी क्यूबिक सिस्टम मिल जाता। लाइक हम 0 के साथ टेंसर प्रोडक्ट करते थे तो हमें क्या मिल जाता था? 0 0 मिल जाता। सिमिलरली अगर डेंसिटी में हमें करना तो क्या करेंगे? रो 1 और रो 2 का क्या कर देंगे? टेंसर प्रोडक्ट कर देंगे तो मल्टी क्यूबिक सिस्टम हमें मिल जाए। ठीक है, तो वो सिमिलर कंसेप्ट, वी हैव टू परफॉर्म द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू डेंसिटी मैट्रिक्स। तो अभी टाइम हो गया बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, एक होता है कि सर ए और बी दो सिस्टम थे, दोनों मिक्स हो गए, आपने उसकी एक डेंसिटी मैट्रिक्स बना दी रो ए बी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें ए की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और बी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? ए की कौन सी इंफॉर्मेशन और बी सिस्टम की कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो हम किसको यूज करते हैं? रिड्यूस्ड डेंसिटी मैट्रिक्स को। रिड्यूस्ड डेंसिटी मैट्रिक्स अगर मैं ट्रेस आउट बी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रो ए मिल जाएगा, और अगर मैं ट्रेस आउट ए करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? रो बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस आउट करना कैसे? मान लो कि ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, ये 2 क्यूबिक सिस्टम है, उसकी डेंसिटी ऑपरेटर है। ठीक, अब मेरे को क्या करना है? इसमें से सेकंड वाले को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा? इस जीरो के साथ क्या कर दूंगा? इनर प्रोडक्ट कर दूंगा। ये कर दिया इनर प्रोडक्ट। ठीक, फिर इस 1 का इस 0 के साथ इनर प्रोडक्ट कर दूंगा। 1 0 सेकंड वाले क्यूबिट का आपस में क्या कर दूंगा? इनर प्रोडक्ट कर दूंगा। ये 0 1, तो यहाँ पे मैंने 0 और 1 का इनर प्रोडक्ट कर दिया। फाइनली 1 and 1, तो 1 and 1 का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इनर प्रोडक्ट कर दिया। अब 1 0 का इनर प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। 0 1 का इनर प्रोडक्ट भी क्या होता है? 0 होता है। ये तो दोनों टर्म 0 होगी। 0 0 का इनर प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। 1 1 का इनर प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो 0 0 प्लस 1 1 बचा, ये मेरे पास क्या है? रो ए है। ए सिस्टम की मैट्रिक्स है। डायरेक्ट आप अनमिक्सिंग नहीं कर सकते, आप रिड्यूस्ड डेंसिटी मैट्रिक्स को यूज करके अनमिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है।